پاکستان میں نیازی ایکسپریس کی بنیاد رکھنے والے اعظم خان نیازی اور بجاش نیازی میں علیحدگی کس بات پر ہوئی؟ بجاش نیازی کی کمپنی نیازی ایکسپریس 99 اور اعظم خان نیازی کی کمپنی نیازی ایکسپریس پرائیویٹ لمیٹڈ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بجاش خان نیازی، ان کی کوئی انویسٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ؟ نہیں، اس نے آ کے تو پرابلمز کھڑی کرنا شروع کی۔ نیازی 99 محدود ہے، 100 گاڑی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ نیازی ایکسپریس ایک نام نہیں، ایک پہچان بن چکی ہے ایک کمفرٹ ٹریول کے لیے، اور یہ نیازی ایکسپریس کو آغاز کرنے والے، پاکستان میں شروع کرنے والے فاؤنڈر اعظم خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ تقریباً 27-28 سال پہلے انہوں نے کیسے ایک نیازی ایکسپریس کے نام سے ایک ٹریول کمپنی کی بنیاد رکھی، اور آج جو ہے پاکستان میں بلندیوں پہ چھو رہی ہے، ہر کوئی جو ہے اس کا سفر کرنا پسند کرتا ہے نیازی ایکسپریس کا۔ اور اب 2 نیازی ایکسپریس بھی ہیں، وہ کیسے ہوئے وہ بھی ان سے جانیں گے۔ نیازی ایکسپریس کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی؟ 88 میں کچھ معاملات ایسے ہوئے پاکستان میں میرے کہ مجھے ملک سے باہر جانا پڑا۔ میں جاپان رہا 2 سال۔ 90 میں جب میں واپس آیا، یہاں پہ میں ایک غریب آدمی مجھے ملا، محلے دار تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں پہلے وین چلاتا تھا اور اب میں فارغ ہوں، آپ تو باہر سے آئے ہیں، آپ کے پاس تو پیسے ہوں گے، تو آپ مجھے جو ہے نا ایک وین لے دو، تو میں اس میں سے آپ کو روزانہ 1500-2000 روپیہ دیا کروں گا، اور خود بھی مجھے 20,000-1500 بچے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیسی گاڑی لے دوں؟ تو اس نے مجھے بتایا جی 82 ماڈل ہوگی تو اتنے کی ہوگی، 84 ہوگی تو ایسی ہوگی، انجن ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا تو اتنے کی ہوگی۔ بھاؤ تو اس نے جب مجھے بتائے تو میں نے اسے کہا یار یہ کام تو ایک اچھا شو روم والا جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ان باتوں کو، تو کیسے اتنے ریٹس کو بڑے پرفیکٹلی بتا رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں 2-3 سال میں نے شو روم پہ بھی کام کیا، ان کا ڈرائیور بن کے رہا، تو میں سنتا رہتا تھا، مجھے ریٹس کا اندازہ بالکل اسی طرح ہے۔ تو میں نے کہا چھوڑو پھر وین شین کو، پھر شو روم بناتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ایسے چمک سی پڑی ہیں، اس نے کہا جی شو روم بنا دیں پھر تو ہم دنیا میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا اوکے۔ میں نے اسے ایک شو روم بنا کے دیا۔ مزے کی بات یہ کہ جو اس شو روم کو ہم نے بنایا تو فرسٹ ڈے جو کاسٹ ہماری آئی وہ اسے بنانے اور بورڈ لگانے اور صوفے وغیرہ چیزیں کرانے پر، اے سی وغیرہ لگوائے، تو 40 سے 42 ہزار روپیہ ٹوٹل خرچ ہوا تھا۔ ویری نیکسٹ ڈے جب ہم نے اس کے لیے دعا کی، اوپننگ کی، تو 2-3 گاڑیاں ہماری سیل ہوئیں۔ ان 2 گاڑیاں سیل ہونے میں ہمیں تقریباً 40,000 بچت ہوئی۔ جب اتنے پیسے ایک دم سے واپس آئے تو مجھے ایک وہ حوصلہ سا ہوا کہ پھر میں نے وہ 2000 تک وہ کام بھی جاری رکھا شو روم والا۔ اچھا، یہ ایک شروعات تھی ٹرانسپورٹ کے لوگوں سے ملنے ملانے کی۔ میری گاڑیاں جب زیادہ ہوتی تھیں تو میں خریدتے تھے، ہم بیچتے تھے، تو جب زیادہ ہوتی تھی تو ہم ان اڈوں سے یا ان روٹس پر چلاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا، اور گاڑیاں کھڑی بھی نہیں رہتی تھیں۔ کچھ ملازمین بھی ہمارے بڑھتے گئے، ڈرائیور جو ایکسٹرا ہم 5-7 رکھتے تھے تو وہ گاڑیاں چلاتے تھے۔ اس طرح ہوتے ہوتے 15-20 تک یہ ریشو چلی گئی کہ ہماری ایک دن میں گاڑیاں 15-20 چل رہی ہوتی تھیں۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے ایک وابستگی بنتی گئی، اڈوں والوں سے معلومات چلتی رہیں۔ پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ گاڑیاں تو میں بناتا رہوں، مجھے ایک اڈا بنانا چاہیے، اپنا ایک ٹرانسپورٹ ٹرمینل بنانا چاہیے جو لوگوں سے زیادہ بہتر ہو، اچھا ہو۔ قدرتی طور پہ شوق بھی تھا۔ وہاں جاپان میں میں بس اڈوں کو دیکھتا تھا تو آرام سے سائٹ پہ بیٹھ کے تو ان کی ورکنگ دیکھتا تھا، کیسے وہ اتنی شفاف سی صاف سی ورکنگ کرتے تھے، تو وہ چیزیں میرے ذہن میں تھیں۔ یہاں پہ آ کے ہم نے پھر اس کو بنانا شروع کیا۔ سن 2000 میں ہمارا لائسنس باقاعدہ ہوا، لیکن ٹرانسپورٹ جو ہے 98 سے ایک کمپنی کی بنیاد اور نام اور یہ چیزیں کرا کے ہم نے گراؤنڈ، یہ 8 فٹ گہرا ہمارا پلاٹ تھا جس میں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ اس کو میں نے آگے 4-5 کنال کو مٹی وغیرہ ڈال کے اور اس کو سیٹ کیا تھا، اور 2-4 کمرے بنا کے واش روم وغیرہ، تو ایک اڈے کی شیپ دی تھی۔ لیکن وہ 2-3 سال ہم اس طرح چلتے رہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے بلڈنگ بنائی، باقاعدہ نقشے کے مطابق اس کو ایک کمپنی کی شکل دے دی۔ جب ہم کمپنی بنا رہے تھے تو میرے چچا ہیں شعیب خان صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ اڈا بنا رہے ہو تو آپ بہتر ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں ہوگا، تو مناسب ہے کہ آپ اپنے قریبی جو آپ کے ریلیٹیو ہیں، وہ میرے کزن تھے، ان کو بھی آپ اپنے ساتھ شامل کر لو۔ میں نے کہا وہ بچے ہیں ابھی تو وہ کام میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، جب بڑا ہو جائے گا تو کام کرنے لگے گا۔ تو ہم نے اسے اپنے ساتھ اس کا نام بھی رکھ لیا۔
कुछ अरसा गुजरा इस तरह। 10 साल बाद वो आना शुरू हुआ ऑफिस, तकरीबन 2007, 8, 9 में। आप बजाज खान नियाजी साहब की बात कर रहे हैं? जी, मेरा छोटा भाई है। उसने आके तो फिर हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू की। हमें प्रॉब्लम्स आती गई तो फिर हमने एक बैठ के फैसला किया 2010 में कि भाई अब हम मज़ीद इकट्ठा ना चलें, आपको हम अलहदा कर देते हैं। जो हमने बिजनेस बनाया है आधा आप ले लो, रेस्ट करो, एंजॉय करो अपने काम को। आधा हमने बांट के उसे दे दिया, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम खड़ी करता रहा। 2013 में बाकायदा तौर पे हम अलहदा हो गए। उसके बाद से वो अपना काम कर रहे हैं और मेरी कंपनी नियाजी एक्सप्रेस है प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं रन करता हूँ और मैं बहुत सारे शहरों में मेरे टर्मिनल हैं और मैं समझता हूँ कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। और आवाम की असल मकसद तो है सर्विसेज देना, तो कार्गो सिस्टम भी हमारा बड़ा मरबूत किस्म का चल रहा है और मैं समझता हूँ कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया है और आज ये कंपनी पूरे पाकिस्तान में वर्क कर रही है। नियाजी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि आपकी कंपनी है, जो कि एक सबसे पहली भी है, अब नियाजी एक्सप्रेस 99 भी है, दो हैं, दोनों एक साथ हैं, तो मुझे बताइएगा दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, वो मेरा छोटा भाई, मेरा कज़न है। सर्विस के लिहाज से भी बताता हूँ कि उसने मुझे कहा कि मैं नियाजी एक्सप्रेस नाम इसी तरह रखना चाहूँगा। मैंने कहा अपनी शनाख्त अलहदा से बनाओ, तो उसने 99 अपनी शनाख्त बना ली, तो वो अब उस नाम से काम कर रहा है। वो अच्छी सर्विस देगा तो लोग उसके साथ सफ़र करेंगे। अगर मेरी सर्विस ज़्यादा अच्छी होगी, मकसद तो सर्विस देना है और अच्छे सर्विस देने वाले लोगों के साथ लोग जुड़ते जाते हैं। ज़राए की बहुतात हो, अवेलेबिलिटी हो, तो ये पूरे पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 पर हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी। और फिर इसके बाद जो मेरा ख्याल है ट्रेन का और एयरलाइन बनाने का, उस पर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन उम्र थोड़ी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको अचीव करें। मुल्क की हालात अच्छे हों तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। सर, नियाजी एक्सप्रेस 99 के जो चेयरमैन है बजाज खान नियाजी, उनकी कोई इन्वेस्टमेंट थी आपके साथ जिस वजह से आपने उसी नाम से ही लगा? नहीं, कोई उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। ये प्लॉट था, जो इस प्लॉट को लाइसेंस मिला था जो कि मैंने लिया था, उसके बाद इनका नाम शामिल किया था साथ, तो ये नियाजी फ्लाइंग कोच सर्विस के नाम से लाइसेंस लिया था। नियाजी एक्सप्रेस कंपनी मैंने बाद में बनाई थी। शहर में मैंने बहुत सारी बसें चलाई थी नियाजी एक्सप्रेस के नाम से, उस वक्त ये नियाजी एक्सप्रेस नाम रखा गया। ये तो ऐसे ही हम आपस में मजाक में कहते हैं कि जैसे किसी का नाम जमाल होता है और हम गुड्डू पप्पू कहते हैं, तो ये एक नियाजी एक्सप्रेस उसका निक नेम है। उनका जो है ना वो महदूद है, बिल्कुल थोड़ा सा है, एक यही टर्मिनल है, इससे आगे वो नहीं जा सके। मेरे बहुत सारे शहरों में, तकरीबन मेन तमाम शहरों में मेरे टर्मिनल मौजूद हैं। दोनों में से आप किसको ज़्यादा कामयाब दिखते हैं? नियाजी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ज़्यादा कामयाब है या नियाजी एक्सप्रेस 99? नियाजी एक्सप्रेस बहुत आगे है, नियाजी 99 महदूद है। थोड़ी सी गाड़ियाँ सिर्फ लाहौर से चलती हैं। मेरी गाड़ियाँ लाहौर से भी चलती हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ, कोयटा, कराची और पिंडी और मनसेरा, थाकोट, नारान तक, और इधर चिश्तियाँ, भावलपुर, झंग, भक्कर, डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, सरगोधा, सियालकोट, चूनिया साइड, बखर जाती हैं, सखर जाती हैं, लाड़काना जाती हैं। उन शहरों से फिर जिग जैग हो रही हैं, जैसे भावलपुर से पिंडी जा रही हैं, भावलपुर से कराची जा रही हैं, भावलपुर से कोयटा जा रही है। इसी तरह DI खान से जो चकवाल कोई जा रही है, कोई लाहौर आ रही है, कोई अपना भावलपुर की तरफ जा रही है। तो ये जिग जैग जो होती है ना, ये तकरीबन 3500 गाड़ी बनती है। जो नियाजी एक्सप्रेस 99 है, उसकी सिर्फ महदूद सी गाड़ी हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल वो 50-100 गाड़ी होगी ज़्यादा जो वो रन कर रहे हैं। शेयर्स का कोई मसला था? नो, कोई ऐसा मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस इख्तियारात, प्रॉब्लम्स, नाराज़ होना, झगड़ना, मतलब इंडिपेंडेंट चाह रहे थे? मुश्किल फील कर रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम खड़ी करे। उनको भी आज़ादी होनी चाहिए थी, ये मैं जानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो जुड़ा हुआ बंदा डिस्टर्ब होने लगे या मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ उससे, उसको भी कंफर्ट जोन दिया जाए, वो भी अपने फैसले खुद से करे। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो उनको मसाइल का सामना है, जिसके बारे में आपने वीडियो भी बनाई थी कि पुलिस के साथ उनका क्लैश चल रहा है, आपका तो नहीं कोई क्लैश हुआ पुलिस के साथ? हाँ, देखिए, पुलिस एक दिन पहले हमारे टर्मिनल पे आई। पुलिस ने इसी तरह बंदे बाहर निकाले, उनको कहा क्यों नहीं एंट्रियाँ कर रहे हैं, डालो गाड़ी में, ये वो। तो मुझे मैनेजर ने फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे मसला है। तो मैंने मैनेजर को कहा कि इनके साथ अच्छी तरीके से बात करो और इन्हें कूल डाउन करके भेजो। फिर मेरी बात भी हुई, तो मैंने भी उन्हें ऑफिसर साहब को कहा कि जी मेहरबानी करें, आप जाएँ, हम आपके ऑफिस में आके वहाँ बैठ के तो मामला देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मामला हल हो गया। शाम को लड़के गए, उन्होंने सीखा, समझा,
ऐसे ऐसे एंट्रियाँ करनी है, और फिर मैंने भी बात की और बात ख़त्म हो गई। इनके टर्मिनल पे जब आए, उन्होंने जो रूटीन वाइज लड़कों को बुलाया, ये पुलिस थोड़ा सा वो होता है ना, अंदाज होता है, वो उन्होंने अपना करने की कोशिश की, तो ये ऊपर उनके प्रेशराइज हो गया। इन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी, इन्हें बड़े अच्छे तरीके से अपने मैनेजर्स के ज़रिए या उन्हें बुलाते, उन्हें चाय शाय पिलाते, बिठा के बात करते अच्छे तरीके से। हमारा काम नहीं है लड़ना, झगड़ना, अकड़ना। जो आजिज़ी में आपकी उड़ान है वो कहीं भी नहीं होगी। आपके भी नियाज़ी एक्सप्रेस पे आई थी पुलिस, आप भी वीडियो बनवा लेते, वीडियो क्यों नहीं बना सके आप? नहीं, मुनासिब नहीं है। हमें पता है कि हम बात करते हैं और हम फ़कीर लोग हैं, बात करते हैं तो अगले बंदे को समझ आती है और वो हमारी बात मानता है। ट्रांसपोर्ट के महकमे में नियाज़ी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड में आपकी कंपनी की बात करूंगा, कितनी जिद्दत आ चुकी है, बसों में कितनी ज़्यादा जो है तब्दीलियाँ आ चुकी हैं? देखो, मैंने जब पहली बस ली थी उस वक्त एसी बस 40 लाख रुपए की थी, हीनो बस होती थी सन 2000 की, और उससे पहले जो कोस्टर थी, टोयोटा कोस्टर, वो एसी वाली होती थी और हाईएस्ट नॉन एसी होती थी। इस टाइप की गाड़ियाँ होती थी। जापानी गाड़ियाँ आई, निशी उनको बोलते थे हम, हीनो इस टाइप की होती थी लेकिन निशी बोलते थे, तो वो बड़ी कंफर्टेबल गाड़ियाँ थी। उसके बाद आई कोरियन गाड़ियाँ आई, डाइवो वगैरह, और उसके बाद चाइना की आ गई, यूटोंग और सनलोंग और हाइगर वगैरह। अब दुनिया तरक्की करते करते फिर एक टाइम आया कि चाइना की बसें हमने रोक दी, लेना ख़रीदना छोड़ दी, क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। हर 2-3 साल बाद ये ख़राब कर रही थी। चाइना वालों ने हमें बुलाया, चाइना हम गए 40 लोग अपनी पूरी यूनियन के। वहाँ जाके हमने उन्हें बताया कि आपकी क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं, हमें ये ठीक करके दोगे, ये हंगरी की डालो, ये इटली की डालो, ये फ़लाँ चीज़ ऐसी डालो, तो हम आपसे गाड़ियाँ लेंगे। फिर उन्होंने वो चीज़ें हमें डाल के सेट करके दी, और फिर अपग्रेड होने के बाद वही बसें आपके सामने ये यूटोंग चल रही हैं। नियाज़ी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की कितनी बसें चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में? तकरीबन मेरे साथ 3500 गाड़ियाँ मुंसलिक हैं। उसमें से जो मेरी ज़ाती हैं वो तकरीबन मेरी 150 के करीब होंगी। तो यहाँ पे कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती मुसाफिरों को कि उन्होंने पता नहीं चलता 99 में जाते हैं या नियाज़ी एक्सप्रेस में जाते हैं? कोई ऐसी कन्फ्यूजन देखने में आई हो? कन्फ्यूजन तब होती जब एक टर्मिनल यहाँ होता, 1-2 किलोमीटर साइड पे होता, फिर लोगों को होता कि हमने किस जगह जाना है। अब जो लोग यहाँ पे आते हैं, फिर एक बंदे ने मुल्तान जाना है, वो मेरे पास भी गाड़ी जा रही है, मुसाफिर बड़ा समझदार है, मुसाफिर चेक करता है कि किसकी गाड़ी अच्छी है, जिसकी गाड़ी अच्छी होगी वो मुसाफिर वहाँ से टिकट ले लेगा। जिस तरह अभी पुलिस आई थी रिसेंटली आपकी चेकिंग करने के लिए कि कितने मुसाफिरों को बुक किया जा रहा है एक शनाख्ती कार्ड पे, इसके अलावा कभी कोई और मसले आए हैं, बंद कर दिया हो, सील कर दिया? प्रॉब्लम्स कुछ गलत करेंगे तब आएंगी। सियासी मामलात में कुछ एफिलेशंस होती हैं लोगों की, हमारी भी एफिलेशंस होती हैं सम टाइम। किसी की पसंद नापसंद की वजह से किसी का कारोबार को रोक देना, ये नाइंसाफ़ी है। एयरलाइन जो है वो आपने क्या सोचा हुआ है कि किस जगह पे होनी चाहिए, किस तरह की एयरलाइन होगी आपकी, और उसका नाम भी क्या नियाज़ी एक्सप्रेस रखेंगे? नाम रखने में हमें कुछ सोचना होगा। इस पर हमारे अगले लोग हैं, अगली नस्ल है, उनका भी नज़रियात हमें लेने होंगे। वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, उसके लिए वो सिविल एविएशन और जो वर्किंग होती है वो सारी उन लोगों ने कर रखी है। जहाँ से लीज़ पर जहाज़ मिलते हैं वो भी हमने वर्किंग कर ली है। अब ये सारी जो वर्किंग है, एक दिन हम बैठेंगे और उसको फिर नाम भी चूज़ करके उसका रख देंगे आगे। सिविल एविएशन से हमने रूट लेने होते हैं कि जी हमारे 10 जहाज़ हैं, तो आपने हमें लाहौर से कराची या लाहौर से दुबई या लाहौर से अमेरिका या कनाडा या जैसे भी, वो हम रूट उनके रूट्स में से चूज़ कर लेंगे टाइम। तो बस इस तरह से होता है। आपका एयरलाइन का प्लान क्या है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल? मैं डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल भी रखूँगा। मैं ये चाहूँगा कि मेरा जहाज़ एक दिन इधर से जाए, उस दिन ही सेम डे वापस आ जाए। इसके बाद फिर ये करूँगा कि एक जहाज़ मेरा इधर से जाए, दूसरा जहाज़ उधर से वापस आ रहा हो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ाएंगे काम को। अगर कैपेसिटी है 250 मुसाफिर की और 150 मुसाफिर आ रहा है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जहाज़ वन साइडेड से ही इतना कमा लेता है, जो उसका फ्यूल वगैरह सारा कोई एविएशन के खर्चे सारे दे दिला के कवर्ड हो जाते हैं, बाकी सारी सेविंग है। थोड़ा किराया रख के लोगों को आसान सहूलत देंगे। बस पे आप जाते हो 5 से 6 हज़ार में, तो जहाज़ में आपको अगर जाना है तो इसको आप 4 गुना पे कर लो। कितना बनेगा? 20,000 या 25,000 से ज़्यादा किराया नहीं होना चाहिए। और इसमें भी बचत है, मैंने कास्ट सारी निकाली है जहाज़ की, ये फ्यूल की सारे खर्चों के बाद भी सेविंग आती है 25,000 किराया रख के भी।